नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, है ना? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, चाहे वो हमारे एफर्ट्स हो, हमारा टाइम हो, हमारी एनर्जी, हमारी स्ट्रेंथ, कुछ भी, बट कुछ तो करना पड़ेगा। All right, so we have discussed about how this rat trap seller had already stolen the money. He had been roaming around in the forest, and finally, he has been able to find a place to spend the night, to find shelter for the night. And he reaches this iron mills, the same Ramshaw iron mills where the crofter used to work once upon a time. So he has reached the same place. He enters the forge, he finds the place, and he asks the blacksmith and the ironsmith whether he can stay for the night there or not. So he does not say anything. He knew that this person is a vagabond, he does not have a home. So he has just come here to stay for the night, and he just nods, okay, fine, you can stay. So in those days, Ramshar Iron Mill was owned by a very prominent ironmaster whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment, he came into the forge and on one of his nightly rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. So ये उन दिनों की बात है जब रामशो iron mills जो थी, it was owned by a very prominent iron master. He was very famous person, a very famous businessman, and his greatest ambition was to ship out good iron to the market. वो ये चाहता था कि उसकी मिल से जो भी आयरन जा रहा है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए. He watched both day and night. वो दिन रात जो था वो अपनी मिल में चक्कर लगाता था, इंस्पेक्शन पे कभी भी आ जाता था और ये देखने के लिए कि सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं. एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस टाइम भी वो अचानक फॉर्ज में आ जाता है ऑन हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close. तो सबसे पहले जो उसकी नजर गई जब अंदर घुसा वो, तो उसने देखा कि there was a tall man, काफी लंबा सा आदमी जो था वो उस फर्नेस के काफी क्लोज पे जाकर के लेट गया था, यू नो, और इतना क्लोज लेटा हुआ था कि उसके गीले कपड़ों से स्टीम उठ रही थी. यू कैन इमेजिन वो कितना क्लोज होगा फर्नेस के. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकस्मिथ, लेकिन आयरन मास्टर ने ब्लैकस्मिथ की तरह से बिहेव नहीं करा. You know, he did not follow his example, but hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. Iron Master उसके पास किया. ब्लैकस्मिथ ने तो एक नजर भी उसको देखने की कोशिश नहीं की थी, जरूरत नहीं समझी थी उस स्ट्रेंजर को. बट द आयरन स्मिथ दिस द आयरन मास्टर, वो उसके पास गया, बहुत केयरफुली उसने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, और फिर पता नहीं क्या सोच करके उसका हैट जो उसने अपने सर पे रखा था, फेस को ढका हुआ था, उसके हैट हटा दिया. बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलॉफ, ही सेड, हाउ यू आर डू लुक. सो जैसे उसने उस हैट को हटाया, ही वाज लाइक, ऑफ कोर्स नील्स ओलॉफ, तुम यहाँ कैसे, कैसे दिख रहे हो. The man with rat traps had never before seen the ironmaster at Ramshaw and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought that he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. तो मैन विद द रैट ट्रैप, उस रैट ट्रैप सेलर ने सोचा, यार ये आयरन मास्टर, इसको तो मैंने आज से कभी देखा नहीं, उसको नाम तक नहीं पता था कि इस आयरन मिल के ओनर का नाम क्या है. लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर इस बंदे को लग रहा है कि मैं इसको कोई पुराना जानकार हूँ, क्या पता ये कुछ एक क्रोनर मुझे दे दे, मतलब कुछ पैसे वैसे मुझे दे दे. तो एकदम से उसने मना नहीं किया कि वो नील्स ओलफ नहीं है. यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी. उसने कहा हाँ, भगवान ही जानता है, मेरे साथ बहुत बुरा कुछ हो गया लाइफ में. You should not have resigned from the regiment, said the ironmaster. That was a mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो उसने कहा कि you should not have resigned. तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. वो तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी. अगर मैं सर्विस में होता ना, मैं तुम्हें कभी ऐसे नहीं करने देता. Well, now of course, but खैर जो भी हो, अब तुम मेरे साथ घर चल रहे हो. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. So, वेगाबॉन्ड को एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे बातचीत में जान पहचान मना ना करना कि ठीक है यार, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं वही नील्स ओलॉफ हूँ जिसको तुम समझ रहे हो. ये एक बात है, थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते तो उसको अच्छा लगता. लेकिन उसके साथ उसके घर तक जाना, और फिर वो उसको अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह ट्रीट करे,
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही डिड नॉट वांट, हम किसी से अचानक मिलते हैं जिसको हम जानते भी नहीं है, वो हमें कह रहे हैं अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तो हम उसके घर जाना पसंद नहीं करते। यू नो मे भी मुसीबत में है तो भाई थोड़ा पैसा दे दे अगर तू मुझे जानता ही है तो, बट नॉट बियॉन्ड दैट। सो यहाँ भी कुछ सिचुएशन ऐसी थी। ही डिड नॉट वांट टू गो टू हिज होम। नो आई couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. उसने वो एकदम घबरा सा गया, बिल्कुल अलर्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो मैं सोच भी नहीं सकता। He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. So फिर अचानक उसको वो 30 kroner याद आए जो उसने अपने पॉकेट्स में रखे हुए थे, और उसने सोचा टू गो अप टू द मैनर हाउस, इसके उस मैंशन तक जाऊं मैं, दैट वुड बी समथिंग लाइक कि मैं वॉलेंटरीली लाइन के डेन में जा रहा हूँ। क्या पता वो क्रॉफ्टर जिसके पैसे मैं चुरा के लाया हूँ वो भी शायद वहीं पे आ जाए, क्रिसमस का टाइम है, उसके घर चोरी भी हो गई है, क्या पता वो मिलने आ जाए और आमने सामना हो जाए। तो ही ओनली गॉट स्केयर्ड। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसको यहाँ रात में सोने की जगह मिल जाए फॉर्ज में। सुबह वो बिना किसी से कुछ बताए चुपचाप यहाँ से जाने चाहता था, जिससे कि कोई उसको नोटिस भी ना करे। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. और आयरन मास्टर को लगा कि उसको बहुत ही एम्बेरसमेंट हो रही होगी शायद, कि वो इतने गंदे से कपड़े पहने हुए, शायद इसलिए वो मेरे घर नहीं आना चाह रहा। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead. And as you may have heard, my boys are abroad, and there's no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. So, आयरन मास्टर ने उसको बहुत ही फ्रेंडली वे में उसको बोला, प्लीज प्लीज ऐसे मत सोचो कि मेरा घर इतना अच्छा है कि तुम वहां पे ऐसे आ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजाबेथ इज डेड, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, शायद तुमने सुना होगा, मेरे दोनों बेटे भी अब्रॉड में हैं, घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी सबसे बड़ी बेटी है। यू नो इसके हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोग सुबह ही बात कर रहे थे कि हमारे पास ऐसे कोई कंपनी भी नहीं है, ऐसे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है जो क्रिसमस पे हमारे साथ है। अब चलो तुम मिल गए हो तो तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा, कम अलोंग एंड हेल्प अस मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर। तो जल्दी से क्रिसमस फूड खाना फिनिश करने में हमारी हेल्प करना, चलो जल्दी से चलो मेरे साथ। But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. So वो stranger, वो vagabond बार बार मना करता रहा, नहीं नहीं मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं आ सकता ऐसे आपके घर में। बट आयरन मास्टर को लगा कि यार ये तो मान ही नहीं रहा, उसने बहुत कोशिशें की उसको मनाने की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसको लगा कि चल यार क्या करूं, फिर छोड़ देते हैं। It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight. Send Tom, he said to the master blacksmith and turned on his heels. तो वो उठा और जाते जाते उसने अपने ब्लैकस्मिथ को, मास्टर ब्लैकस्मिथ को जिसका नाम स्टैंडस्टॉर्म था, उसने उसको बोला कि ऐसा लगता है आज तो कैप्टन वॉन स्टेल ना आपके साथ ही रुकना चाहते हैं, आज की रात आप ही के साथ गुजारना चाहते हैं। और ऐसा कहते हुए ही टर्न ऑन हिज हील्स, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन वो अपने आप में ही हंसते हुए जा रहा था। एंड ब्लैकस्मिथ न्यू, who knew him understood very well that he had not said his last word. और वो मास्टर ब्लैकस्मिथ वो इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि आयरन मास्टर ने आखिरी बात नहीं कही है, उसने हार नहीं मानी है। जिस तरह से वो हंसते हुए जा रहा था, श्योरली उसके दिमाग में कोई आइडिया है। यू नो It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. और अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि बाहर फिर से कैरेज की व्हील्स की साउंड सुनाई दी, और इस फॉर्ज में अनदर गेस्ट केम। इस बार आयरन मास्टर खुद नहीं आया था, बल्कि उसने अपनी डॉटर को भेजा था, इस उम्मीद में कि शायद उसकी डॉटर के पास ज्यादा अच्छी परसुएशन पावर्स हैं, शायद वो उसको कन्विंस करके क्रिसमस पे अपने घर ले आएगी। She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and the iron and charcoal still glowed in the furnace. So, जब वो अंदर आई, she was followed by a valet. वैले के हाथ में एक बड़ा सा, उसके आर्म पे एक बड़ा सा बिग फर कोट था। वो लड़की देखने में बहुत प्रिटी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट एंड बहुत शाय सी लग रही थी, जैसे ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करती हो। इन दी फॉर्ज, फॉर्ज में सब कुछ वैसे ही था जैसे शाम को था जब आयरन मास्टर आया था।
ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस अभी भी उसी बेंच पे बैठे हुए थे। आयरन और चारकोल अभी भी फर्नेस में ग्लो कर रहा था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. और वो जो स्ट्रेंजर था, जो रैट ट्रैप सेलर था, उसने अपने आप को पूरी तरह स्ट्रेच कर लिया था फ्लोर पे। लंबा होके आराम से पिग हेड का एक छोटे से पीस को सर के नीचे पिलो की तरह लगा रखा था, और अपनी हैट को अपनी आंखों के ऊपर रखा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. और जैसे उस लड़की ने देखा कि वो वहां पड़ा हुआ है, वो सीधे उसके पास गई और उसने उसका हैट उठा दिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. जैसे उस लड़की ने उसके फेस पर से वो हैट हटाया, ऐसा लगता है जैसे उस आदमी को ना एक आंख खोल के सोने की आदत थी। तो वो अचानक उठ के बैठ गया। He jumped up, और बहुत घबरा सा गया वो। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. So उस लड़की ने कहा कि my name is Edla Wilmanson, and my father came home. आज पापा ने घर आके बताया कि आप यहाँ फॉर्ज में सोना चाहते हैं, तो मैंने उनसे परमिशन मांगी कि क्या मैं आपको घर ले आऊं। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में इतना बुरा समय चल रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave just as freely as you came. Only, please stay with us for over Christmas Eve." So, उसने उसको बहुत ही compassionately, बहुत ही प्यार से उसने उसको बोला, with her heavy eyes, उसकी eyes भी बिल्कुल heavy हो गई थी। She noticed, उसने ध्यान दिया कि वो बंदा जो था वो बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने मन में सोचा कि या तो ये कुछ चुरा के आया है या ये जेल से भागा है, कुछ तो जरूर है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, और फिर उसने फटाफट बोला कि अच्छा सुनो कैप्टन, यू मे बी श्योर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखो इस बात का। यू विल बी अलाउड टू लीव अस, आप बिल्कुल फ्री हो। जितने फ्रीली आप हमारे साथ चल रहे हो उतने ही फ्री हो आप हमारे यहाँ से जाने के लिए। आप जब चाहो जा सकते हो, सिर्फ इस क्रिसमस ईव पे आप हमारे साथ रुक जाओ। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. और उसने इतने प्यार से इतने फ्रेंडली मैनर में बोला कि रैट ट्रैप पेडलर को उसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ठीक है, इट्स ओके। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ, मिस, ही सेड। आई विल कम एट वंस। और उसने कहा कि आई एम रियली सॉरी मिस, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरी वजह से इतना परेशान हो जाओगे, वरना मैं पहले ही आ जाता। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out of the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. So, उसने उस वैले से वो फर कोट एक्सेप्ट किया, उसको अपने फटे पुराने चिथड़ों के ऊपर अच्छे से वो वेलवेट वाला कोट उसने डाला, सॉरी फर कोट डाला, एंड फॉलोड द यंग लेडी, और वो उस लड़की के पीछे पीछे कैरिज में चला गया। इस बार उसने भी एक नजर उस ब्लैकस्मिथ की ओर डालना भी जरूरी नहीं समझा। जैसे पहले ब्लैकस्मिथ ने उसको नहीं देखा था, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दी थी, इसी तरह से इस समय उसने भी उसको कुछ ध्यान नहीं दिया। जबकि ब्लैकस्मिथ हैरान था कि भाई ये देखने में तो ऐसे वैगबॉन्ड से लग रहे हैं, और ये मेरे मास्टर का, मेरे कंपनी के मालिक का दोस्त है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I'm sitting in the trap and will never get out of it. So, जब वो राइड कर रहा था, जब वो कैरेज में बैठ करके मैनर हाउस जा रहा था, तो उसको बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। इविल फोरबोडिंग्स, बुरे बुरे ख्याल आना। Why the devil did I take that fellow's money? मुझे क्या हुआ था? किस शैतान ने मुझे चक्कर लिया था कि मैंने उस बेचारे का पैसा ले लिया? He thought. Now I'm sitting in the trap. और मैं खुद उस ट्रैप में फंस गया हूँ। शायद मैं इससे कभी नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन जो थी वो क्रिसमस ईव थी। आयरन मास्टर जब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आया, तो वो बड़ा खुश था। उस बड़ा सेटिस्फाइड था कि चलो एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया, बुरे समय में है तो चलो मैं उसकी हेल्प भी कर पा रहा हूँ। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि he had been able to find an old friend. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. और उसने ब्रेकफास्ट करने जब वो डाइनिंग रूम में आया, तो उसकी डॉटर जो थी वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल लगा रही थी। तो उसने उसको बोला कि पहले तो हमें ये देखना है कि कुछ खा पी के उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हो जाए, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जैसा लग रहा है वो, एंड देन वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू
than to run around the country selling rat traps. और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ तो काम इसको करवाना पड़ेगा, ये बेचारा ऐसे कब तक इधर उधर जो है भागता रहेगा रैट ट्रैप सेल करने के लिए. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night, I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. So उसने कहा कि it's queer, कितनी अजीब सी बात है ना कि जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो गया उसके साथ. लास्ट नाइट उनको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वंस अपॉन अ टाइम ही हैड बीन एन एजुकेटेड मैन. कहीं पढ़े लिखे भी होंगे वो, ऐसा भी उनके हाव भाव से, उनके कपड़ों से, किसी भी चीज से ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था ऐसा. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. So, father ने अपनी daughter को समझाया कि तुम थोड़ी पेशेंस रखो, जैसे वो नहा धो के साफ सुथरा होके आएगा ना, तुम खुद हैरान रह जाओगी. He'll look so different. Last night तो naturally he was embarrassed. तो बुरे हाल में था वो. जैसे ही वो नहाएगा धोएगा ना, उसके ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ में, मतलब वो गरीबी वाले कपड़ों के साथ में उसके वो सारे मैनर्स भी हट जाएंगे. वो फिर से वही अपना वेल एजुकेटेड तुम्हें दिखने लगेगा, जो मेरे साथ वंस अपॉन अ टाइम काम किया करता था. Just as he said this, the door opened and a stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. So, just as तभी उसने वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी अचानक दरवाजा खुला and that stranger entered. यस ऑफ कोर्स, अब वो बिल्कुल नहा धो के वेल ड्रेस्ड होकर आया था. वैली ने उसको नहलाया था, उसके हेयर कट भी दिया था, उसको शेव भी करवाया था. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड. अभी वो बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, बहुत ही अच्छे आयरन मास्टर के उसने कपड़े पहने हुए थे. व्हाइट शर्ट थी, स्टार्च्ड कॉलर, होल शूज, कोई फटे पुराने जूते नहीं उसके. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम टू बी प्लीज्ड. अब वो गेस्ट तो नहा धो के साफ सुथरा वेल ड्रेस होके आ गया था, लेकिन उसको देख के आयरन मास्टर खुश नहीं था. He looked at him with a puckered brow. It was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. जब उसने उसको देखा, his eyebrows puckered. ये क्या है? उस फॉर्ज में कल रात को जो उसने हल्के हल्के फर्नेस के ग्लो में उसने उस ट्रैम्प को जब देखा था, उसने पक्का गलती कर दी थी. But that now, which is when he stood there in broad daylight, लेकिन अब जबकि वो बिल्कुल साफ सुथरा होके अच्छी सनलाइट में, मतलब प्रॉपर डे लाइट में उसके सामने था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. ये मेरा पुराना कॉमरेड नहीं है भाई, ये कौन है? व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड. एंड मास्टर को बहुत गुस्सा आया कि ये कौन स्ट्रेंजर है जो उसके घर में चला आया है और उसके घर में यूज कर रहे हैं चीजों को. All of a sudden, he was very angry. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. और स्ट्रेंजर ने, उसने भी कोई कोशिश नहीं की कुछ भी बात बनाने की या कुछ भी छुपाने का. उसको समझ आ गया था कि उसका सुहाना ख्वाब, the splendor, had come to an end. It's not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At first, I could put on my rags and go away. तो उसने कहा, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं. मैंने कभी भी ये नहीं जताया कि मैं कुछ और हूँ. मैं तो यही कह रहा था कि आई एम अ पुअर ट्रेडर. मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, बार बार आपसे मिन्नतें की कि मुझे वही फॉर्ज में रहने दिया जाए. पर खैर कोई बात नहीं, अभी भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है. वर्स्ट एट द वर्स्ट, मैं अपने चिथड़े पहन करके, अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और मैं ऐसे चला जाऊंगा. Well, said the ironmaster, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. So, ironmaster ने थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहा, well, इतने भी तुम ऑनेस्ट नहीं हो. You must admit, तुम्हें मानना पड़ेगा इस बात को तो कि तुम भी इतने ऑनेस्ट नहीं हो. तुम भी मेरे कहने पे यहाँ चले आए. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर शेरिफ तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहे तो. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Now I'm going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap, and all the good things that offer to you are nothing but cheese rinds and bits of woe, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. So,
जैसे ही उसको ये रियलाइज हुआ ट्रैम्प को कि ये आयरन मास्टर पुलिस को बुला सकता है, शेरिफ को बुला सकता है, वो एकदम गुस्से में आ गया। एंड इंस्टेड ऑफ प्लेइंग डिफेंसिव ही बिकेम अ लिटिल ऑफेंसिव, यू नो। ही स्ट्रक फॉरवर्ड, वो एक कदम आगे बढ़ा और जोर से फिस्ट अपनी एक पंच मारा टेबल को। एंड ही लिटरली शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑन आयरन मास्टर, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताऊंगा मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, यू नो, दिस होल वर्ल्ड, it's nothing but a big rat trap, एक बहुत बड़ा rat trap है। And all good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork, कुछ नहीं है ये सब cheese rings और bits of pork हैं, set out to drag a poor fellow into the trouble, एक बेचारे गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए ये सब। And if the sheriff comes, अगर शेरिफ आया और मुझे लॉक किया उसने, then you Mr. Headmaster याद रखना मेरी बात को, you know, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी अपने लिए कुछ बड़ा चाहोगे, कुछ बड़ा चीज को अपनी जिंदगी में चाहोगे तुम, then you will be caught in the trap, तब उस दिन तुम भी ऐसे ही फंसोगे। The Iron Master began to laugh. उसके इस रिएक्शन पे आयरन मास्टर को हंसी आ गई। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps you should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now, get out of here as fast as you can. So, आयरन मास्टर हंसने लगा, उसको लगा कि यार ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी ऑफेंसिव हो रहा है तो बात बिगड़ सकती है, यू नो। तो उसने कहा, This was not so badly said. तुमने इतना भी बुरा नहीं कहा, my good fellow. Perhaps you should let the sheriff alone. एक काम करते हैं, शेरिफ को क्रिसमस ईव पे आराम करने देते हैं, उसको भी इंजॉय करने दो, त्योहार का टाइम है। बट नाउ, फिलहाल तुम यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और वो बंदा जैसे ही दरवाजा खोल के जाने लगा, तभी समथिंग हैपेंड। एडलर को कुछ फील हुआ, वो गई आगे, उसने जाकर के दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, मुझे लगता है ही ऑट टू स्टे, इसको हमारे साथ रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। What in the world are you doing? said the father. फादर को गुस्सा आ गया, किसकी बात करी जिसको जानते भी नहीं, उसको अपने घर में रखने की बात कर रही है। उसने कहा, तुम कर क्या रही हो आखिर? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. सो डॉटर एडला जो थी वो शी वॉज क्वाइट एम्बेरेस्ड, उसको समझ नहीं आया कि पापा को क्या आंसर करे। सुबह से वो बहुत खुश थी, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक होमलेस आदमी को वो लोग अपने घर में लेके आए हैं। उसको कितना अच्छा लगेगा जब उसको लगेगा कि उसका भी अपना घर है, उसको कितना क्रिसमसी फील होगा, उसको त्योहार की वो फीलिंग आएगी, यू नो। वो बहुत खुश थी कि किसी एक पुअर हंगरी रेच को, एक गरीब आदमी को जो इतना गरीब है, इतना हंगरी रहता है हमेशा, वो उसके लिए क्रिसमस खूबसूरत बना सकती है, वो उसको एक अच्छा फेस्टिवल फील दे सकती है। वो सुबह से इतनी खुश थी, वो ढेर सारी चीजें बना रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब उसको लगा कि अरे बंदा चला जाएगा, उसको लगा इसके साथ साथ मेरे सारे थॉट्स, मेरे सारे ड्रीम्स सब चले जाएंगे। एंड दैट वाज द रीजन शी इंटरसीडेड, यू नो, इसीलिए उसने उस वैगabond को जाने से रोका। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। He walks and walks the whole year long, and there's probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. Just one in the whole year. फिर उसने अपने फादर को बोला, एक्चुअली पापा मैं स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, ये पूरे साल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। पूरे देश में, पूरे कंट्री में शायद एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे इसको वेलकम किया जाता हो, जहां इसको लगता हो कि हाँ ये मेरा घर है, यहाँ मैं आराम से रह सकता हूँ। हर जगह से इसे भगा दिया जाता है। ही इज ऑलवेज अफ्रेड, हमेशा ही डरा हुआ रहता है कि इसको अरेस्ट ना कर ले, पुलिस वाले से पूछताछ ना करने लगे, यू नो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ पूरे साल में सिर्फ सिर्फ एक दिन मैं इसको ऐसा दे सकूं जिस दिन ये भी खुश हो सके, इसको भी सुकून मिल सके। द आयरन मास्टर mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. आयरन मास्टर ने अपने कुछ बोला, कुछ बड़बड़ाया जो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी अपनी डॉटर को वो अपोज नहीं कर पाया। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. और उसने बोला, उसकी डॉटर ने कहा कि देखो ठीक है, हमसे गलती हुई है, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम उसको अपने घर ले आए। बट एनीवे, मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को हमें, जिसको खुद हम बुला के लाए हैं, जिसको हमने प्रॉमिस करा कि क्रिसमस को हमारे साथ बिताए, हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे, हम उसको ऐसे भगा दें। You don't preach worse than a parson, said the Iron Master. I only hope you won't have to regret this. So,
एंड मास्टर ने बोला कि तुम तो एक पार्सन से भी ज्यादा बुरा प्रीच करती हो, इतनी बातें बनाती हो कि तुम्हारी बात को मना करना पॉसिबल नहीं है। आई जस्ट होप कि तुम्हें इस बात को रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। So the young girl took the stranger by hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. फिर उस यंग गर्ल ने, एडला जो थी वो गई, उसने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा, उसे टेबल पे लाकर बिठाया एंड कहा कि नाउ सिट डाउन एंड ईट, आप बैठो और ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि वो देख रही थी कि उसके फादर ने गिव अप कर दिया था। The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to food. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. वो बंदा कुछ नहीं बोला, बिना कुछ कहे वो चुपचाप टेबल पे बैठ के खाना खाने लगा, और थोड़ी थोड़ी देर में वो एडला की ओर देख रहा था कि आखिर इसे क्या हुआ। Why had she done this? What could the crazy idea be? क्या करना चाहती है ये? क्यों इसने मुझे रोका? क्यों इसने मेरे को जाने नहीं दिया जबकि इसके फादर मुझे यहाँ से भगा रहे थे? उसके दिमाग में यही सब थॉट्स चल रहे थे। After that Christmas Eve at Ram's show and passed just as it always had. उसके बाद क्रिसमस ईव पे कुछ खास नहीं हुआ, जैसे हमेशा होता था उनके घर में वैसे ही अपना क्रिसमस ईव शांति से निकल रही थी। Stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. और उस स्ट्रेंजर ने भी कोई खास मुसीबत खड़ी नहीं की क्योंकि वो सिवाय सोने के और कुछ कर ही नहीं रहा था। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. दोपहर से पहले ब्रेकफास्ट के बाद वो गेस्ट रूम के एक सोफे पे पड़ा हुआ बहुत देर तक सोता रहा। एट नोन दे वोक हिम अप, दोपहर में जब लंच का टाइम हुआ तो वो लोग उसको रूम में गए जगाने के लिए, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ हिज गुड क्रिसमस फेयर, जिससे कि वो भी क्रिसमस का जो फेयर है, जो क्रिसमस फूड है, उसमें से अपना शेयर खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन फिर वो जाकर के सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramshaw. ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों से शायद वो कभी भी इतने सुकून की नींद नहीं सोया था, जितने पीसफुली, जितने क्वाइटली और जितने सेफली वो यहाँ पे सो पा रहा था। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that he disappeared again. So शाम हुई, उन लोगों ने क्रिसमस ट्री को लेट करा, उसको फिर से जगाया गया कि शाम हो गई है, चलो क्रिसमस ट्री सजाया है, चलो वहां पे। वो वहां पे आया ड्राइंग रूम में, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कैंडल लाइट्स भी उसे हर्ट कर रही थी, और थोड़ी देर वहां पे रुकने के बाद फिर से वो सोने चला गया। 2 hours later he was aroused again. 2 घंटे बाद फिर उसे जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और फिर वो डाइनिंग रूम में फिर आया, उसने क्रिसमस फिश और पॉरेज खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. And when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. So शाम के डिनर के बाद जब उसने खाना खा के वो उठा, तो उस रूम में जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो हर एक के पास इंडिविजुअली गया, उसने हर एक को थैंक यू और गुड नाइट कहा। और फिर जब उस एडला के पास पहुंचा तो उसने एडला ने उसको समझाया कि देखो मेरे फादर चाहते हैं कि ये सूट तुम एज ए क्रिसमस प्रेजेंट रख लो जो तुमने पहना हुआ है, तो ये मेरे फादर की ओर से तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है ये। ही डिड नॉट हैव टू, तुम्हें ये रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू वांटेड टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट क्रिसमस ईव हमारे साथ स्पेंड करना, जहाँ पे तुम सुकून से सो सको, जहाँ तुम इस बात का भरोसा हो कि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो तुम आ सकते हो, यू विल बी वेलकम्ड अगेन, तुम्हें दोबारा से वेलकम ही मिलेगा यहाँ पे। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो बंदा उस लड़की को देखता ही रहा, कुछ नहीं कह पाया, उसको समझ ही नहीं आया उसको क्या बोले, लेकिन वो बाउंडलेस अमेजमेंट, बहुत हैरानी से उसकी ओर देखता रहा कि कैसी लड़की है, मुझे जानती नहीं, मैं इतने बुरे हाल में सारी जिंदगी से ऐसे ही रह रहा था, एंड शी गेव मी सच अ वंडरफुल क्रिसमस, ये जानते हुए भी कि मैं वो नहीं हूं जो ये लोग मुझे समझ के लाए थे, फिर भी इसने मुझे जाने नहीं दिया। He was in his heart, he was very thankful. Next morning, the ironmaster and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. अगले दिन जब सुबह हुई तो आयन मास्टर उसकी डॉटर दोनों अच्छे मूड से सुबह सुबह उठे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो चर्च जाएंगे और जो मॉर्निंग की फर्स्ट सर्विस होती है वो अटेंड करेंगे। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, उनका गेस्ट जो था वो अभी भी सो रहा था, उन्होंने उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं समझी।
When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब करीब 10 बजे वो लोग वहां से लौट रहे थे, सुबह के 10 बजे चर्च से वापस आ रहे थे, तो द यंग गर्ल एडला जो थी वो चुपचाप सर झुकाए अपने पापा के साथ में कैरेज में बैठी हुई थी. शी वॉज फीलिंग वेरी डिजेक्टेड. ऐसा लग रहा था जैसे उसको कुछ धोखा मिला है. At church, she had learned that one of the old prophets of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च जाके उन्हें पता लगा कि उनके आयरन में जो एक ओल्ड प्रॉफ्टर काम किया करता था, उसके घर चोरी हो गई थी. और चोरी उस बंदे ने की थी जो रैट ट्रैप सेल करता है, वो घूमता है. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था. तो वाह, किस बंदे को तुमने अपने घर में रहने दिया. हाँ, मैं तो सिर्फ इसी बात को सोच रहा हूँ कि हमारे घर में कितने सिल्वर स्पून बचे होंगे कबर्ड में जब तक हम घर पहुंचेंगे. The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. So, वो चर्च गया. वाले ने बताया उसको, सॉरी, आयन मास्टर ने उसको अपने गार्ड से पूछा, वैले से पूछा कि वो बंदा भी है कि चला गया. तो और साथ में उसने ये भी बताया कि चर्च में मेरे को सुनने को मिला कि वो बंदा एक चोर है. वैले ने कहा वो बंदा तो चला गया. दैट मैन इज गॉन. और वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया. ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो एक छोटा सा पैकेज है जो मिस विल मैनसन के लिए छोड़ गया है, ये कह करके कि उसको बहुत खुशी होगी अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगी उसकी ओर से एक क्रिसमस प्रेजेंट मान करके. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. एडला ने उस पैकेज को खोला. वो इतना लूजली पैक था कि जैसे उसने थोड़ा सा खोला, वो सारा का सारा पैकेट खुल गया और उसके अंदर जो कुछ भी था वो एकदम सबकी नजर में आ गया. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large, jagged characters. जैसे उसने वो खोला, she gave a little cry of joy. वो इतनी खुश हुई उसको देख करके. उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप था और उस रैट ट्रैप के अंदर वो 3 wrinkled 10 kroner नोट्स थे जो उसने एक दिन पहले चुराए थे क्रॉफ्टर के यहाँ से. एंड दैट वाज नॉट ऑल. सिर्फ इतना ही नहीं था, उसमें लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, मतलब बहुत ही अजीब सी हैंडराइटिंग में जिसमें बहुत बड़े बड़े अल्फाबेट्स में उसने लिखा था, एक लेटर लिखा हुआ था. ऑनरेबल एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you. In return, as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. That you can give back the money to the old man on the roadside. Where's the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers? तो उसने कहा कि ऑनरेबल एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो काइंड, आपने मेरे साथ इतना अच्छा से मेरे को रखा, मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया जैसे मैं सच में कोई कैप्टन हूँ, तो इवन आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू. मैं भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ अच्छा ही बनना चाहता हूँ इन रिटर्न, उसी तरह से जैसे कि रियल कैप्टन करता. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस पे आपको मेरे जैसे चोर की वजह से एम्बेरस होना पड़े. आप ये पैसे उसी मैन को दे दीजिएगा, उस ओल्ड मैन को जो रोड साइड पे रहता है. हु हैज द मनी, वो अपना मनी पाउच जो है वो विंडो फ्रेम के पास लटका के रखता है एज अ बेट. हमारे जैसे पुअर वॉन्डरर्स को वो कितना लग जाता है. द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप. If he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. तो उसने कहा कि ये रैट ट्रैप जो है मेरी ओर से एक छोटा सा क्रिसमस प्रेजेंट है. एक ऐसे रैट की ओर से, एक ऐसे चूहे की ओर से जो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंसा हुआ है. अगर आपने उसे कैप्टन की तरह रेज नहीं किया होता, अगर आपने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी होती, तो शायद मैं अपने आप को उस गलती से, उस गुनाह से कभी साफ नहीं कर पाता. आई कुड नॉट प्योरिफाई माई सेल्फ. यू नो तो इसीलिए रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन्सडेल. और इस तरह से उसने ये लेटर लिख करके उसको चला गया.